वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह स्टूडेंट्स। सो बेटा साडा नैक्सट आर्टिकल दैट इज़ रीफ्रैक्शन फ्रॉम सफेरिकल सरफेसिस रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਫਰॉम ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸਿਸ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਅਸ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੌਪਿਕ, ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, so this is n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 by r। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ n2 ਤੇ n1 ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ, ਇੱਕ n1 ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਹੈ, n2 ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਹੈ। v ਕੀ ਹੈ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ, ਸੌਰੀ ਇਮੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, u ਇਜ਼ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ, r ਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ, ਦਿਸ ਵਨ ਕਰਵਡ ਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਵਡ ਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ। ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ n2 ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ n1 ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂ ਅਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਫੀਅਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਕਰਵ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ O। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗਾ P। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਇਜ਼ P। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ P ਤੇ C ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਆ ਮੈਂ ਡਾਟਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। n1 ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ n1 ਆ, ਉਸ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਹਦੀਆਂ ਇਮੇਜਿਸ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ n2 ਵਾਲੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਇਹਦਾ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਇੱਧਰੋਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਲਾਈਟ ਰੇਜ਼ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਉਣੇ, ਐਟਲੀਸਟ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਜਿਹੜੀ ਅਲੋਂਗ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਰਮਲ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਾਊਟ ਬੈਂਡਿੰਗ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੀ ਚਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਚਲੇਗੀ ਨਾਰਮਲ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋਣ ਕਰ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਤੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਸੀਡੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਅਰਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ, ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰ ਦੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ, ਆ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਰਮਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਡਰਾ ਹੋਏਗਾ ਰੇਡੀਅਸ। ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਿਸ ਨਾਰਮਲ ਵਿਲ ਮੀਟ ਐਟ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਕਰਵੇਚਰ ਆਫ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ। ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਰੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਈ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਰੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਿੱਧੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੇਅਰਰ ਟੂ ਡੈਂਸਰ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੈਂਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਨਾਰਮਲ। ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਹੀ, ਪਰ ਬੈਂਡ ਕਿੱਧਰ ਕਰ ਗਈ? ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰ ਗਈ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਾ ਰੇ ਵਿਲ ਮੀਟ ਹੀਅਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਰੀਫਰੈਕਟਡ ਰੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਈ। ਜਿੱਥੇ 2 ਰੀਫਰੈਕਟਡ ਰੇਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੇਜ ਬਣ ਗਿਆ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਨੋਟੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ θ1, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਨੂੰ M ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। M ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸੁੱਟਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, P ਡੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਆ ਦੇਖੋ P ਪੁਆਇੰਟ ਪੋਲ ਵਾ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, P ਡੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ M ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸੁੱਟਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਵਿਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ θ1 ਐਂਗਲ ਆਫ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਰੀਫਰੈਕਟਡ ਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ θ2, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰੀਫਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ θ2 ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
इंसीडेंट रे प्रिंसीपल एक्सिस नाल जिहड़ा एंगल बना रही दैट इज अल्फा, उन्होंने नाम दे दिता गया। ठीक है, नॉर्मल प्रिंसीपल एक्सिस नाल जिहड़ी एंगल बना रहा है, ठीक है, नॉर्मल आ देखो जिहड़ा नॉर्मल टू इंटरफेस जिहड़ा एंगल बना दैट इज बीटा। रिफ्रैक्टेड रे जिहड़ा बेटा एंगल बना रही है प्रिंसीपल एक्सिस नाल दैट इज गामा। ये नोटेशंस असीं दे लैणियां, पता चल गया। आई इमेज आ, ओ ऑब्जेक्ट आ, पी पोल आ, लैट मी रिपीट अगेन, ठीक है। सी सेंटर ऑफ करवेचर ते पी डैश की है जिथों एम तो असीं पॉइंट ऑफ इंसीडेंस तो परपेंडिकुलर सिटिया है प्रिंसीपल एक्सिस। ठीक है, ये तुहानूं सब नूं पता है कि पोल तो सारे डिस्टेंसिस, ऑल द डिस्टेंसिस विल बी मैजर्ड फ्रॉम पोल। ਜਿਹੜੇ डिस्टेंस इंसीडेंट रे की डायरैक्शन च मैजर किए जाएंगे दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसिस विच आर मैजर्ड इन द डायरैक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंसीडेंट लाइट दे विल बी टेकन एज नैगेटिव। ठीक है, मतलब पोल तो राइट नू इंसीडेंट रे इधरों जा रही है ना, सो पोल तो राइट नू सारे डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, पोल तो लैफ्ट नू सारे डिस्टेंस नैगेटिव होंगे। ठीक है, सारे डिस्टेंस पोल तो मैजर किए जाने हैं। पोल तो सेंटर ऑफ करवेचर तक का डिस्टेंस दैट इज रेडियस ऑफ करवेचर। आ देखो आ पूरे का पूरा रेडियस ऑफ करवेचर। ठीक है, सो दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, सो क्योंकि राइट नू मैजर हो रहा, सो देखो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट लाइट। हुण की है पोल तो इमेज द डिस्टेंस दैट इज टेकन एज वी, पोल तो इमेज द डिस्टेंस टेकन एज वी, पोल तो ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस दैट इज टेकन एज यू। हुण जिन्ने भी पैरामीटर इस डायग्राम च मैं ड्रॉ किए दैट आर टोटली एक्सप्लेनड, उन्होंने एक्सप्लेन कर दिता गया, डायग्राम साडे कोल तैयार है। ठीक है, हुण असीं इहदे उपर मैथमैटिकल ट्रीटमेंट करके, ठीक है, ए जिहड़ा रिलेशन है, ठीक है, डिराइव करना। सो देखो किवें इहदे वास्ते की है, कहंदा सब तो पहला ट्रायंगल OMC लो बेटा। OMC इत्थे देखो ध्यान नाल, OMC, इट इज OMC। ठीक है, OMC च दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, ते आ की है θ1। सानू को प्रॉपर्टी हुंदी मैथमैटिक्स च, ज्योमैट्री च असीं कीती है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल अल्फा ते बीटा बनते पे ए वाली OMC ट्राइंगल दे। ठीक है, तो ये बाहर जो एक्सटीरियर एंगल बनता पाया दैट इज θ1। ठीक है, सो θ1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। आ देखो मैंने ट्राइंगल बाहर कट के बनाया, दिस इज अल्फा OMC ट्राइंगल अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज θ1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू θ1। ठीक है, सो ये मैं रिलेशन लिखता है, θ1 की वैल्यू आ गई इन दी फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, सो नेक्स्ट इन ट्राइंगल CMI ट्राइंगल डायग्राम च देखो बेटा, C इट इज M एंड I, आ जी ट्राइंगल है साढ़े को CMI, दिस वन आ नॉर्मल आ रहा इधर प्रिंसिपल एक्सिस दे अलोंग ते इधर रिफ्रैक्टेड रे। ये जी बेटा बना रही साढ़े को, आ देखो θ2 ते गामा ये की ने इंटीरियर एंगल ने, तो बीटा की है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, सो साढ़े को क्या आएगा, इदा की ट्राइंगल है, θ2 एंड गामा इंटीरियर ने, बीटा इज इंटीरियर। सो देखो सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल। सो इतने क्या आएगा, बीटा इज इक्वल्स टू θ2 प्लस गामा। ठीक है, तो θ2 क्या आएगा, θ2 की वैल्यू निकाल लो, बीटा माइनस गामा। सो वी हैव कैलकुलेटेड बेसिकली θ1 एंड θ2 विच इज θ1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड θ2 इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, आप कैलकुलेट कर लें, सब तो पहला साडा काम ही है इस डेरिवेशन च। ठीक है, नैक्सट असम्पशन की है गया हूँ, असम्पशन है कि जिहड़ियां रेज ने पैरा एक्सियल रेज ने, दे आर वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आ जिहड़ियां जिन्नियां भी रेज ने ना, ये पैरा एक्सियल रेज ने। ठीक है, जिन्हें इंसीडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, सारा कुछ पैरा एक्सियल आ, मतलब दे आर वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नेड़े, इट मीन साढ़े अल्फा बीटा गामा ये सारे बहुत छोटे होंगे। ठीक है ना, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के रेज बिल्कुल नेड़े नेड़े तां नहीं उठ रही, नेड़े नेड़े है। ठीक है, सो अल्फा बीटा गामा ये सारे एंगल्स के होंगे, दे विल बी वेरी वेरी स्मॉल एंड सिमिलरली θ1 θ2 विल ऑल्सो बी वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि θ1 θ2 की टर्म च असीं निकाले अल्फा बीटा गामा की टर्म च, अल्फा बीटा गामा आर ऑलरेडी स्मॉल, इट इंप्लाइज θ1 θ2 विल बी वेरी वेरी स्मॉल एंड मोर P डैश विल ऑलमोस्ट कोइंसाइड विद P। ठीक है ना, ये जेडे मतलब P डैश ते P बिल्कुल नेड़े होंगे, असीं उन्हां नूं ऑलमोस्ट सेम लै सकते हैं। ठीक है, वी विल टेक दैम एज सेम पॉइंट। ठीक है, बिकॉज द रेज आर पैराएक्सियल। ये तीन असम्पशन जिहड़ियां असीं ख्याल च रखणियां, पता चल गया किहड़ियां, रेज पैराएक्सियल होने करके P डैश P ना कोइंसाइड करता है, θ1 θ2 बहुत बहुत स्मॉल ने, ठीक, वेरी वेरी स्मॉल, अल्फा बीटा गामा आर ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। हुण देखो, हुण असीं टैन अल्फा निकालांगे, टैन बीटा निकालांगे, टैन गामा निकालांगे। ठीक है, हुण टैन थीटा का फॉर्मूला होंदा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आ जाओ इधर। ठीक है, आ देखो टैन अल्फा, दिस इज अल्फा, आ देखो एम पी डैश ओ, मतलब एम पी डैश नूं पी लै सकते हैं, एम पी ओ। टैन अल्फा निकालो, टैन अल्फा की है बेटा साडे कोल, ठीक है, देखो इट इज H बाय माइनस यू, साइन उदा ही लेने,
क्योंकि देखो सारे डिस्टेंस कितों मैजर होने, पोल तो, ठीक है। जो पोल तो मैजर होने तो पोल तो लैफ्ट जो डिस्टेंस ऑपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट मैजर हो, दैट इज टेकन एज नेगेटिव। सो एच इज दिस हाइट, ठीक है, एम पी, ठीक है, हाइट हैगी है क्योंकि पी डैश तो पी सेम लै रहे हैं। टैन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज एच बाय माइनस यू। टैन बीटा एच बाय आर, ठीक है, तुम डायग्राम तो क्लीयरली देख सकते हो। एम पी सी ट्राइंगल च एम पी डैश सी या एम पी सी, क्योंकि पी डैश इज इक्वल टू पी आप लै चुके हैं। सो एम पी सी या एम पी डैश सी च देख लो तुम, एच बाय आर आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा के। टैन गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाओ एम पी डैश आई दे विच, ठीक है, एंड यू विल गैट इट एज एच बाय बी। ਇਹ तीन वैल्यूज साढ़े को आ गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा। हुण अप्लाई करो स्नैल्स लॉ। स्नैल्स लॉ किवें अप्लाई हुंदा है, साढ़े कोल साइन ऑफ N1 ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ n, ਇਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ θ2 ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਐਂਗਲ ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਖੋ N1 sin θ1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ N2 sin θ2, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ θ1 θ2 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੇ ਸਮਾਲ ਆ, ਜਦੋਂ θ1 θ2 ਸਮਾਲ ਹੋਣ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ sin θ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ θ। ਸੋ sin θ2 will be θ2, sin θ1 will be θ1। we will put these values here। N1 θ1 is equals to N2 θ2। θ1 θ2 ਅਸੀਂ अल्फा बीटा की टर्म च निकाल लिया। सो θ1 की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा भर दो, θ2 की वैल्यू बीटा माइनस गामा भर दो, ठीक है, क्लीयर है, ठीक है। सो नैक्सट देखो बेटा हुण ये साडे को आ गया। हुण कहंदा सिंस अल्फा बीटा गामा आर आल्सो वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट एज टैन अल्फा जिहड़े आपां उपर निकाले आ, टैन अल्फा टैन बीटा टैन गामा, ठीक है। सो टैन अल्फा अल्फा हो जाएगा, टैन बीटा बीटा हो जाएगा, टैन गामा गामा हो जाएगा, बिकॉज अल्फा बीटा गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। हुण देखो ਇਹਦਾ मतलब अल्फा ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, टैन अल्फा, ठीक है। बीटा ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, टैन बीटा। गामा ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, टैन गामा। बीटा ਨੂੰ टैन बीटा, ठीक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ टैन अल्फा टैन बीटा टैन गामा ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਇੱਥੇ अल्फा बीटा ਨੂੰ ਅਸੀਂ टैन अल्फा टैन बीटा टैन गामा ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ परपेंडिकुलर अपॉन बेस ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਦਿਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਕਮ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ n1 ਦਾ n1 ਆ ਜਾਏਗਾ, अल्फा ਦਾ h बाय माइनस u, बीटा ਦਾ h बाय r n2, ठीक है, आ जाएगा। उसी तरह बीटा का एच बाय आर माइनस गामा का क्या आ जाएगा एच बाय बी, क्लीयर, ठीक है। एच जो बेटा दोनों पासों कॉमन निकल के कैंसल आउट हो गया। N1 इज इक्वल टू 1 बाय आर माइनस 1 बाय यू, माइनस वाला अगे ले गया, आर वाला अगे लेंदा, माइनस वाला पीछे ले। सो N2 1 बाय आर माइनस 1 बाय बी, ठीक है। सो हुण देखो इत्थे साडे कोल रिलेशन क्या आ गया, इट इज़ N1 बाय आर माइनस N1 बाय यू, N1 वाले एक साइड पर ले लियो, ठीक है, इज इक्वल टू N2 बाय आर माइनस N2 बाय बी, ठीक है। ये साढ़े को आएगा N2 बाय वी माइनस N1 बाय यू, ठीक है। सो देखो वी तो यू वाले एक साइड है क्योंकि आप रिलेशन ड्राइव करना होगा, इज इक्वल टू N2 बाय आर माइनस N1 बाय आर। हूँ इतने क्या है N2 बाय वी माइनस N1 बाय यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाय आर। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द स्फेरिकल सर्फेसिस, ठीक है। एक गल्लां दा किहड़ियां दा ख्याल रखना है, डिस्टेंस इज टू बी मैजर्ड, ऑल द डिस्टेंस शुड बी मैजर्ड फ्रॉम पोल, डिस्टेंस शुड बी डिस्क्राइब्ड विद साइन इन द डेरिवेशन। अगर इंसिडेंट लाइट दे ऑपोजिट डिस्टेंस लै रहे हो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव एंड the reverse will be taken as positive. N1 is the refractive index of the medium from where the light is coming, and N2 is the refractive index of the medium where the light is going. ये गल दा ख्याल रखना है, ठीक है, समझ लगी, ठीक है। So this was the derivation for the refraction of light from the spherical surfaces, clear। So this derivation should be clearly should be clear to you, and you should practice this derivation, and also remember the relation derived in the given derivation, okay। So next in the next video we are going to discuss about lens and its basic terms related to lens, okay। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।